So next example is solve dy by dx. Solve cos square x dy by dx plus y is equals to tan x. ओके, तो ये जो इक्वेशन है ये भी लीनियर इक्वेशन है। क्या सिंपल से ये तो पता चल रहा है y के साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ना ही कोई प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट और पावर तो यहाँ पे है नहीं, अप्लाई नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या है, cos स्क्वायर x, तो dy by dx के साथ cos स्क्वायर x तो होना नहीं चाहिए, तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज dy by dx plus y 1 upon cos square x is sec square x is equals to tan x upon cos square x is tan x into sec square x. Right, now what we have is dy by dx plus py is equals to q form, okay, where p is equals to sec square x and q is equals to tan x into sec square x. okay, तो हम पहले ही कर लेते हैं e raised to integration p dx which is equals to e raised to integration sec square x dx. बोलो sec square x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, anyone? Integration of sec square x, I want the answer. मैंने आपको पहले ही बोला था कि मुझे सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूला याद चाहिए। लास्ट टाइम भी आप कोई आंसर नहीं दे रहे थे, आप भी नहीं देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। यस यस महिमा, yes it's tan x plus c. okay, so integration of sec square x dx is e raised to tan x. okay, अब पावर में है तो प्लस c नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, so it is e raised to tan x, okay, जिसको हम बोलेंगे IF which is integrating factor. कि जिसको हम IF भी बोलेंगे which is e raised to integration p dx for the linear differential equations. okay, which is equals to okay, अब क्या होगा, अब हम वापस से जाते हैं इंटीग्रेशन के ऊपर, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, y is equals to e raised to minus integration p dx into integration q into e raised to integration p dx plus c. so from this we can write that e raised to integration minus p dx, e raised to p dx क्या आया, e raised to tan x, so यहाँ पे हो जाएगा e raised to minus tan x into integration of q is tan x into sec square x, tan x into sec square x into e raised to tan x dx plus c. अच्छा, अब आगे यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या हो सकता है, यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास देखो tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स है, tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स का हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है ना, tan x इंटू सेक एक्स है या फिर सेक स्क्वायर है, tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स है, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कुछ और सपोज कर सकते हैं। क्या सपोज करेंगे, तो tan x इक्वल्स टू समथिंग ले लें, तो क्या मिलेगा देखते हैं कि सपोज tan x इज इक्वल्स टू t सपोज कर लेते हैं कि तो tan x इक्वल्स टू t सपोज किया तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt। देखो sec स्क्वायर x इनटू dx मिल गया हमें dt, यहाँ पे बाकी सब बचा tan x, तो ये हो जाएगा हमारे लिए वर्कआउट करेगा। Okay, so let us suppose tan x is equals to t and from this we can write that sec square x dx is equals to dt. Okay, so what we have is
y is equals to e raised to minus 10x into इंटीग्रेशन ऑफ 10x की जगह पे आएगा t sec square x dx is equals to dt and e raised to 10x which is equals to e raised to t dt plus c. तो अब इसका इंटीग्रेशन तो हम इजीली कर पाएंगे e raised to minus 10x into इंटीग्रेशन ऑफ t into e raised to t. अब इसको हम u and v अप्लाई करेंगे तो what will be u and what will be v? बोलो u क्या होगा v क्या होगा? सिंपल सी चीज है, t is our u and e raised to t is our v. तो t into integration e raised to t dt minus integration of dt by dt into integration of e raised to t dt और इसका इंटीग्रेशन dt प्लस c तो हमारे पास ऑलरेडी है ही. तो आंसर विल बी y is equals to e raised to minus 10x into t into integration e raised to t का इंटीग्रेशन होता है e raised to t itself minus integration of dy dt by dt is 1 into integration e raised to t is e raised to t dt plus c which is equals to e raised to minus 10x into t into e raised to t minus integration of e raised to t is e raised to t plus c. So we have y is equals to e raised to minus 10x into the value of t is 10x e raised to t is e raised to 10x minus e raised to 10x plus c. So this is our answer. We can write this as e raised to minus 10x into e raised to 10x. दोनों में से कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा 10x minus 1 plus c. Okay, so e raised to minus 10x plus 10x which is equals to 1. So y is equals to 10x minus 1 plus c. This is our final answer. कोई डाउट? No. So next example. Solve 1 minus x square dy by dx plus xy is equals to x into 1 minus x square raised to 1 by 2. यहाँ पे क्या करेंगे, सेम थिंग है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सबसे पहले डिवाइड कर देंगे तो व्हाट वी हैव इज dy by dx प्लस 1 upon 1 minus x square x into y is equals to x into 1 minus x square raised to 1 by 2 upon 1 minus x square. Okay, comparing with dy by dx plus py is equals to q, what we have is p is equals to x upon 1 minus x square and q is equals to x into 1 minus x square raised to 1 by 2 minus 1 by 2 which is minus 1 by 2. No, 1 by 2 minus 1 is minus 1 by 2. So this is our p and q. Now integration e raised to p dx. IF which is our integrating factor e raised to integration p dx which is equals to e raised to integration x upon 1 minus x square dx. ये क्या हो जाएगा,
ई रेस टू इंटीग्रेशन ये देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर एफ ऑफ एक्स हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स। तो यहाँ पे हम माइनस टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, तो माइनस वन बाई टू माइनस टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा f plus x upon f of x, okay, which is equals to log mod fx. So we can write that e raised to minus 1 by 2 log 1 minus x square, okay, which is equals to minus 1 by 2 ऊपर चला जाएगा, तो e raised to log 1 minus x square raised to minus 1 by 2, okay, एंड ये दोनों कैंसिल होके हमें जो लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू माइनस 1 बाई 2, और वी कैन राइट दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ व्हिच इज ई रेज टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अब जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मैंने लिखा था आपको क्या होता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ dx प्लस c। ओके, तो इसके ऊपर जाएंगे तो y इंटू आई एफ क्या मिला 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q क्या है, q इज x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ क्या है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। तो ये क्या हो गया y into 1 upon square root of 1 minus x square is equals to इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 1 हो जाएगा dx प्लस c। अब देखो यही इंटीग्रेशन हमने पहले किया, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इंटीग्रेशन हमें क्या मिला था लेकिन e की पावर में था, हमें विदाउट e की पावर करना है, तो यही करेंगे माइनस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड इंटीग्रेशन x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस c which is equals to minus 1 by 2 log mod 1 minus x square plus c किसके equals to y upon square root of 1 minus x square which implies that y is equals to square root of 1 minus x square divide by 2 log mod 1 minus x square plus c। okay, so this is our answer। कोई डाउट है इसमें? okay, so next example solve the differential equation x plus 2y square into dy by dx is equals to y for y is greater than 0। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, y है, विच इज अब यहाँ पे y की पावर है, राइट, तो ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुई ही नहीं, साथ ही में x के साथ भी dy बाई डी एक्स है, y स्क्वायर के साथ भी dy बाई डी एक्स है, तो ये तो हमारे पास बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो गया। लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू y dx by dy। okay, so we can write this as
x plus 2y square is equals to y dx by dy. Okay, which implies that dx by dy is equals to x by y plus 2y. ओके, और अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा, dx बाई डी वाई माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 2y. अब देखो हमारे पास इक्वेशन क्या होती थी, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू. ये थी हमारी लीनियर इक्वेशन. ओके, तो सेम अगर x और y इंटरचेंज कर दिए जाए तो क्या मिलेगा, dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू. ये नंबर 2 हो जाएगी. अब यहाँ पे p और q जो है वो क्या होंगे, आइदर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ y. क्यों, क्योंकि इसमें p और q क्या होते थे, आइदर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x. ये दोनों यहाँ पे थे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अदर और कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ y. तो ये यहाँ पे मिल गया. देखो अब इसको अगर इससे कंपेयर करें dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, तो हमें क्या मिलेगा, p इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन y एंड q इज इक्वल्स टू 2y. ओके, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर with respect to y integration plus c. Okay, so what will be our integrating factor which is equals to e raised to integration p dy. अब देखो y के फॉर्म में आया तो dy होगा, dx नहीं होगा, ये यहाँ पे ध्यान रखना है. e raised to integration p हमने क्या लिखा हुआ है, माइनस 1 अपॉन y, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन y dy which is equals to e raised to minus log y. Okay, we can write that e raised to log y raised to minus 1 which is equals to 1 upon y. ये e raised to log अगर आप अप्लाई करें प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम तो हमें आंसर मिलेगा 1 upon y. तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हमें मिला 1 upon y. तो सॉल्यूशन इज x into 1 upon y is equals to इंटीग्रेशन q क्या है हमारे पास, q is 2y into 1 upon y dy plus c. तो आंसर इज x अपॉन y इज इक्वल टू, ये y कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू y इज 2y प्लस c. फ्रॉम दिस वी कैन राइट दैट x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस cy. ओके, okay, next example. Solve dy by dx plus 3y is equals to cos square x. तो एक काम करो, ये ट्राई करो और आंसर बोलो मुझे क्या मिल रहा है आंसर.
हाँ y is equal to 1 by 6 plus 1 by 26 into 2 sin 2x plus 3 cos 2x plus c into e raised to minus 3x. यस करेक्ट। बाकी सबका आ गया। व्हाट अबाउट अदर्स? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसका आंसर मैं लिख दूं ना। द आंसर इज y is equals to 1 by 6 plus 1 by 26 2 sin 2x plus 3 cos 2x plus c into e raised to minus 3x। अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो आपके अंदर है सिलेबस में। क्या है? इसके बाद वाला जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ही है ना। तो एप्लीकेशंस है क्या? एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। हाँ solve dy by dx is equals to minus 2y okay. So next one is we have to solve that dy by dx is equals to minus 2y where x equals to 0 and y equals to 2। एप्लीकेशंस नहीं है तो सिर्फ लास्ट टॉपिक हमारा यही था ना। आर एक्सक्लूडेड सेकेंड ऑर्डर नहीं, मतलब टॉपिक सिखाए है सारे। मेरा टॉपिक तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर इंटीग्रल फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल होमोजेनियस इक्वेशन और लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म मतलब ये लास्ट ही है ना लीनियर फॉर्म। हाँ ये लास्ट है।
ओके, तो अभी सबका रिवीजन कर लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर फिर बाद में नेक्स्ट लेक्चर में ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी मज़ा नहीं आएगा नेक्स्ट स्टार्ट करने में। ओके, तो थोड़े इक्वेशन अभी के कर लेते हैं एग्जाम्पल्स। ओके, तो ये वेरिएबल सेपरेबल से होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2y। देखो सिर्फ सिंपल सा वेरिएबल दिख रहे हैं हमें, यहाँ पे y है और x का कोई टर्म नहीं है। वी हैव गिवन दैट x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 2, सो वी कैन सॉल्व दिस एज dy अपॉन 2y minus 2y is equals to dx. Okay, so by integrating both the side, what we have is integration minus integration of dy upon 2y is equals to integration of dx. From this minus minus 1 by 2 bahar, integration of 1 upon y is log y is equals to integration of 1 is x plus c. So our answer is log y raised to minus 1 by 2 is equals to x plus c, or we can write that log 1 upon y, square root of y is equals to x plus c, or we can also write this as 1 upon root y is equals to e raised to x plus c. Okay, 1, 2 and 3, all these three answers are correct, but we have to put the value of x equals to 0 and y equals to 2. So if we put x equals to 0 और y equals to 2 किसमें रखना है, यहाँ पे ही रखते हैं ना, x equals to 0, y equals to 2. So what we have is e raised to c is equals to minus 1 upon root 2. Okay, so from this our answer is 1 upon minus root y, sorry minus नहीं है, positive है, e raised to 2 e raised, which is equals to e raised to c x into e raised to c. E raised to c is 1 upon root 2. So this is our answer. We can write that ये root 2 upon root y हो जाएगा, root 2 upon y is equals to e raised to x. So this is our solution. Number 2, dy by dx is equals to 3x square plus 1 divided by 4y plus 2 when x equals to 1 and y equals to 2. क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हम दोनों साइड दे देंगे। अच्छा, ये y की टर्म है, यहाँ पे x की टर्म है, सो वी कैन राइट दिस सिंपली एज dy into 4y plus 2 is equals to 3x square plus 1 into dx. Okay, integrating both the side, what we have is integration of 4y plus 2 dy is equals to integration of 3x square plus 1 dx. So इंटीग्रेशन करो और वैल्यू रख दो x और y की, टेल मी द फाइनल आंसर. क्या 1? Answer is 2y square plus y is equals to x cube plus x plus 10. This is the answer in book, but it may vary.
नॉट एग्जैक्टली 2 टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस वाई, आंसर तो यही मिलेगा 2 टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 10. Next is solve dy by dx is equals to x plus y. यहाँ पे क्या करोगे? बोलो क्या करोगे यहाँ पे? ऐसे एग्जाम्पल हमने किए हैं. dy by dx is equals to x plus y है, तो क्या करना है? x plus y equals to कुछ सपोज कर लेना है. Let x plus y equals to t. तो इसको किससे डिफरेंशिएट करना है? विद रिस्पेक्ट टू x. तो क्या मिलेगा? 1 plus dy by dx is equals to dt by dx. So from this we can write that dy by dx is equals to dt by dx minus 1. तो ये इसी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे. So what is dt by dx minus 1 is equals to t. This implies dt by dx is equals to t plus 1. Now complete the integration and tell me the answer. Dt upon t plus 1 is equals to dx होगा, and applying both side the integration, what will you get the answer? My log x plus y plus 1 is equal to x plus c. Log Modulus x plus y plus 1 is equal to x plus c. is equals to X plus c. x plus c is correct. Next example is x minus y minus 2 dx minus 2x minus 2y minus 3 dy is equals to 0. Okay. तो क्या करेंगे यहाँ पे? क्या सपोज करेंगे? सिंपल से दिख रहा है x minus y minus 2 dx is equals to 2x minus 2y minus 3 dy. Which is equals to x minus y minus 2 is equals to 2x minus 2y minus 3 dy by dx. कैसा है? तो अब बोलो क्या सपोज कर सकते हैं इसके अंदर?
कुछ तो सपोज करना पड़ेगा, लेकिन क्या करेंगे? एनी आइडिया? X minus y. Yes. We'll suppose that x minus y is equals to t. From this, we can write that 1 minus dy by dx is equals to dt by dx, and from this we can write that dy by dx is equals to 1 minus dt by dx. So from this we can write that x minus y is equals to t. So t minus 2 is equals to, ये क्या हो जाएगा, 2t minus 3 dy by dx is equals to 1 minus dt by dx. So which implies that t minus 2 is equals to 2t minus 3 minus 2t minus 3 dt by dx. Okay. So which gives us 2t minus 3 dt by dx is equals to, ये क्या हो जाएगा, t minus 2t is minus t plus 1, that is 1 minus t. तो सारा ये देखो t के फॉर्म में ही है, तो dt यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी हम डायरेक्टली कर लेते हैं, 2t minus 3 upon 1 minus t dt is equals to dx. So integrating both the side, what we have is integration of 2t minus 3 upon 1 minus t dt is equals to integration dx. बोलो क्या होगा इंटीग्रेशन?
क्या क्या इंटीग्रेशन में? क्या है आंसर? कर रहे हो नहीं? देखो इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये 1 माइनस टी है तो इसको हम लिख सकते हैं 2t माइनस 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस टी डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 कॉमन t माइनस 1 अपॉन 1 माइनस टी माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस टी डी टी, यहाँ पे भी डी टी आ जाएगा विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। कंप्लीट कर दो, ये आंसर बोलो फटाफट। इजी तो है एकदम।
क्या है आंसर? कहाँ है आप लोग? चलो थोड़े एग्जांपल होमवर्क में दे देती हूँ। dy by dx is equals to sin x plus y प्लस कॉस x प्लस वाई। यहाँ पे भी यही करना है, x प्लस वाई जो है उसको हमें t सपोज करना है। नेक्स्ट वन इज x इंटू एक्स माइनस वाई dy प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगी हमारी होमोजीनियस। होमोजीनियस में हमें पता है क्या करना है, y इक्वल्स टू वी एक्स सपोज करना है और इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट वन इज dy by dx x dy by dx is equals to y plus cot y by x। ये भी होमोजीनियस हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल dy by dx plus 2x upon 1 plus x square y is equals to 1 upon 1 plus x square whole square। ये होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट वन फ्रॉम सेम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equals to 5x minus 4y for y equals to 0 and x is equals to 0। इतने होमवर्क में कंप्लीट करने हैं।